آواز دے۔ اس کہنے لگا کیا بول رہی ہے خاتون، یہ تیرا بیٹا ہوش میں ہوگا تب جواب دے گا، تیرے بیٹے کو ہوش ہوگا تب یہ جواب دے گا، یہ بے ہوش پڑا ہے آخر جواب دے گا تو دے گا کیسے؟ لیکن ممتا تھی نہیں مانی، تھوڑی دیر کے بعد پھر اٹھتی ہے۔ اللہ رب العزت جل جلالہ کا بے پناہ فضل اور اس کا احسان ہے، اللہ نے ہمیں اور آپ کو انسان بنایا ہے۔ انسان بنا کر اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا وفادار غلام بنایا ہے۔ اگر وہ چاہتا تو ہمیں کیڑا مکوڑا بھی بنا سکتا تھا، لیکن اللہ نے فضل فرمایا کہ اس نے اپنے پیارے محبوب مصطفیٰ جان رحمت علیہ السلام کا ہمیں وفادار غلام بنایا ہے۔ تو اب غلاموں کی ذمہ داری یہ ہے، اللہ کے پیارے محبوب مصطفیٰ جان رحمت علیہ السلام کے پیارے صحابی ہیں، بیان کرتے ہیں کہ ہم نبی اکرم علیہ السلام کی بارگاہ کرم میں موجود تھے۔ آقائے کائنات منبر شریف پر خطبہ ارشاد فرمانے کے لیے کھڑے ہوئے تو تمام صحابہ جو اس وقت مسجد نبوی میں بیٹھے حضور کے ذکر سن رہے تھے، وہ صحابی کہتے ہیں کہ ہم غلاموں کے بیٹھنے کا انداز یہ تھا، دو زانو ہو کر ادب سے ہم حضور کی باتیں سن رہے تھے، ٹک ٹکی باندھ کر مصطفیٰ جان رحمت کے رخ زیبا کو دیکھ رہے تھے، اور اس انداز میں بیٹھے بیٹھے ہم حضور کی باتیں سن رہے تھے۔ اگر ہمارے سروں پہ آ کر کے پرندے بیٹھ جائیں تو وہ یہ سوچنے پہ مجبور ہو جائیں کہ ہم کسی انسان پر بیٹھے ہیں یا کسی مجسمے پر بیٹھے ہیں۔ کل یہ حضور کی پاکیزہ محفل میں بیٹھنے والے مصطفیٰ جان رحمت علیہ السلام کے غلاموں کا طرز عمل تھا۔ آقا کے ذکر میں بیٹھنے والے غلاموں کی یہ عظمتیں تھیں، ان کے سامنے جب ان کے محبوب کی باتیں ہوتی یا محبوب اپنی زبان نبوت سے ان سے ہم کلام ہوتے تو وہ سراپا پیکر ادب کا بن کر کے مصطفیٰ کی باتیں سنتے۔ لیکن آج ہم اسی نبی کا کلمہ پڑھنے والے، اس پیغمبر کا اپنے آپ کو امتی کہلانے والے، مصطفیٰ جان رحمت کی غلامی کا دم بھرنے والے، اپنے آپ کو مصطفیٰ جان رحمت کا غلام کہنے والے، کہاں ہیں وہ لوگ جو آج کے اس جلسے میں میلے ٹھیلے اور دکانوں کے چکروں پہ چکر کاٹ رہے ہیں؟ میں ان کو دعوت فکر دے رہا ہوں، آپ مصطفیٰ جان رحمت کے غلام ہیں، آپ نے پیغمبر اعظم کا کلمہ پڑھا ہے، آپ اپنے آپ کو حضور کا غلام کہنے پر فخر محسوس کر رہے ہیں، لیکن آئیے آپ اسلام کے لیے کیا کر رہے ہیں؟ آپ نے اسلام کو دیا کیا ہے؟ آپ نے اسلام کے لیے کن پریشانیوں کا سامنا کیا ہے؟ آپ نے اسلام کی ترقی کے لیے کیا کام کر رکھے ہیں؟ آپ دیکھیں گے یہی ہمارا جوان ہے، جو آج ہمارا جوان جتنا آج کے زمانے میں مسلمان ذلت و رسوائی کا سامنا کر رہا ہے، اتنا ذلت و رسوائی کا سامنا اس قوم نے کبھی نہیں کیا تھا۔ آج کا جوان آج آپ کو گلی گلیارے کی زینت بنا ملے گا، رات کے 12 بجے ہوں گے تب آپ کو ٹہلتا وہی ملے گا، رات کے 2 بجے ہوں گے تب بھی وہی آپ کو ٹہلتا ملے گا۔ باتیں اگرچہ کڑوی ہیں لیکن حقیقت پر مبنی ہیں۔ میں اپنے علماء کی تائید چاہوں گا، مصطفیٰ جان رحمت کا کلمہ پڑھنے والوں، کیا اسی چیز کا نام غلامی ہے؟ ہم نے ہسٹری مصطفیٰ کے غلاموں کی پڑھی ہے، جہاں محبوب کا ذکر ہوتا ہے پروانے وہی آنکھیں سمٹ کر بیٹھ جاتے ہیں، لیکن ابھی تک ایسا نہیں دیکھا کہ محبوب کی باتیں چل رہی ہو اور محب ادھر ادھر ٹہل رہا ہو۔ لیکن مصطفیٰ جان رحمت کے غلاموں کی عظمتیں یہ ہیں کہ پیغمبر کی باتیں جہاں ہو، صرف انسان ہی نہیں اللہ کے فرشتے بھی ان محافل کو تلاش کرتے ہوئے زمین پر گشت کرتے ہوئے محفلوں میں شرکت کرتے ہیں۔ لیکن کہاں ہے آج کا وہ مسلمان؟ مصطفیٰ جان رحمت
रहमत का पाकीज़ा जलसा सजा है, आकाए कायनात की बातें हो रही हैं। वो कल भी टहल रहे थे, आज भी टहल रहे हैं। कल भी हंसी ठिट्ठे का बाजार गर्म था, आज भी बाजार वही से उसी रविश पर कायम है। मैं आपसे आकर अर्ज कर रहा हूँ, आप अपने आप को मुसलमान कहते हो, आपने इस्लाम के लिए क्या कुर्बानियां दी है? आपको पला पलाया इस्लाम मिला है, आपने इस्लाम के लिए कभी आपने खाना नहीं छोड़ा, आपने इस्लाम की तरक्की के लिए आपने कोई कुर्बानी नहीं दी है। बल्कि हकीकत यह है, कल भी आप खड़े खड़े खा रहे थे, आज भी खड़े खड़े खा रहे हैं। कल भी खड़े खड़े पी रहे थे, आज भी खड़े खड़े पी रहे हैं। कल भी तुम्हारे यहाँ हंसी ठिट्ठे का माहौल था, क्या तुम्हें नजर नहीं आता? सोशल मीडिया का दौर है, आपके हाथ के अंदर बड़ा मोबाइल है, पल पल की अपडेट आपके हाथों में, आपके हाथों के जरिए आपके कानों तक पहुंच रही है। आप आंखों से देख रहे हैं कितने जुल्म किए जा रहे हैं, कितने मसाइब किए जा रहे हैं। आज भी हमारी कौम आंखें खोलने के लिए तैयार नहीं है, आज भी हमारी कौम होश के नाखून लेने के लिए तैयार नहीं है। मैं आपसे अर्ज कर रहा हूं, अगर वाकई मदीने वाले के गुलाम हो, मुस्तफा जाने रहमत के गुलाम हो, तुमने कोई कुर्बानी नहीं दी है, तुमने कोई मशक्कत नहीं उठाई है, तुमने कोई परेशानी नहीं उठाई है। अगर परेशानी समझना है, आप उस किसान से पूछो, इस किसान ने 6 महीने तक खेत को तैयार किया था। जब फसल तैयार हो गई, आखिर वक्त में जैसे ही फसल तैयार हुई थी, आसमान से बारिश बरसने लगी, और जब बारिश इतनी थी सारी फसल बर्बाद हो गई। किसान कलेजा पकड़ के वही खेत में बैठ गया। आपने जाकर कहा, भाई इस वक्त में तू कलेजा थाम कर क्यों बैठा? तो वही किसान जवाब देगा, अगर कलेजा पकड़ के मैं नहीं बैठूंगा तो भला कौन बैठेगा? 6 महीने की मेहनत जाये हो गई। मैंने इसी खेती के लिए न दिन को दिन जाना था, इसी खेती के लिए न मैंने रात को रात जाना था, इसी खेती के लिए न मैंने अपनी जिंदगी को। माशाअल्लाह हजरात, इंतहाई अदब और एहतराम के साथ सभी लोग अपनी अपनी जगह पर खड़े हो जाएं। मुजाहिद सुन्नियत, खतीब दौरा, गाजी मिल्लत हजरत अल्लामा गुलाम रसूल बलियावी साहिब क़िबला और हुजूर साहिब सज्जादा की आमद है। सारे लोग करीब आए और मोहब्बत के साथ इस्तकबाल करें। नारे तकबीर! सारे लोग जरा बुलंद आवाज से जवाब दें, नारे तकबीर, नारे रिसालत, उर्से मुकद्दस, फैजाने सरकार ख्वाजा सुलेमान शाह, उलमाए अहले सुन्नत, आमदे हुजूर साहिबे सज्जादा, हुजूर गाज़िए मिल्लत अल्लामा गुलाम रसूल बलियावी साहिब क़िबला, ख्वाजा का हिंदुस्तान। नारे तकबीर, नारे रिसालत। हजरात, हमारे आज के जलसे के खुसूसी मेहमान, खुसूसी खतीब गाज़ी मिल्लत अल्लामा गुलाम रसूल बलियावी साहिब क़िबला की आमद है, और हुजूर पीर तरीक़त रहे बरे राह शरीयत अताए सरकार ताजुश शरिया हज़रत अल्लामा हाजी इफरान साहिब क़िबला की आमद है। सारे लोग मोहब्बत के साथ इन पाकीज़ा चेहरों की ज़ियारत करें और मुफ्ती हसनैन मंजरी साहब क़िबला का जो बयान चल रहा है उसको मोहब्बत से समाअत करें। जो लोग पीछे खड़े हैं उनसे अदब के साथ गुजारिश है कि आप हज़रात अब आगे आकर बैठ जाएं, मोहब्बत के साथ बैठ जाएं। सारे लोग बुलंद आवाज से बोले लब्बैक या रसूल अल्लाह। हाथ उठा के बोलिए लब्बैक या रसूल अल्लाह। मैं अर्ज ये कर रहा था, आप देख रहे हैं मिंबर शरीफ पर गाज़ी मिल्लत की आमद है। अभी 3-4 रोज कबल बिहार अल्पसंख्यक आयोग का हजरत को अध्यक्ष बनाया गया है। इतनी खामोशी से बोलेंगे आप? एक सुन्नी आलिम को इतना बड़ा ओहदा मिला है, जी जी, तो इसको आप कम समझ रहे हैं? ये आला हजरत का शेर पूरे भारत में बबांगे दोहल रज़वियत पर काम कर रहा है। अल्लाह पाक इनकी उम्र में, सेहत में बरकतें अता फरमाए। सारे लोग बुलंद आवाज से बोले लब्बैक या रसूल अल्लाह। अर्ज ये कर रहा था, पला पलाया आपको इस्लाम मिला है, आपने इस्लाम के लिए क्या किया है? आप कल भी उसी नहज पर काम कर रहे थे, आज भी उसी नहज पर काम कर रहे हैं। आपने क्या किया है? आप जायजा तो लें, सोशल मीडिया का दौर है, पल पल की अपडेट आपके हाथों के जरिए, आपके हाथों के जरिए आपके कानों तक पहुंच रही है। ये सारे हालात से आप बखूबी बाखबर हैं। लेकिन मैं अर्ज ये कर रहा था, जैसे ही उसकी सारी किसान की मेहनत जाय हुई,
किसान कलेजा थाम कर बैठ गया और जैसे ही बैठा तो आपने पूछा भाई क्या कर रहे हो? जवाब मिलेगा अगर मैं कलेजा थाम कर नहीं बैठूंगा तो कौन बैठेगा, अगर मैं कलेजा नहीं पकड़ूंगा तो कौन पकड़ेगा। इसलिए कि 6 महीने की मेहनत बर्बाद हो गई। इस खेती के लिए न मैंने दिन को दिन जाना था न रात को रात जाना था, हर वक्त इसी में लगा रहा कि बहुत सारी उम्मीदें वाबस्ता थी इसी खेती से। लेकिन आखिर वक्त में पकी फसल पे तूफान आ गया, बारिश हो गई, सारी फसल बर्बाद हो गई। अगर मैं न रोऊंगा तो कौन रोएगा। अब मैं आपसे कहता हूँ तकलीफ इसलिए उस किसान को हुई थी कि जिसने मेहनत की थी, तकलीफ इसलिए उस किसान को हुई थी जिसने मशक्कत का सामना किया था, तकलीफ इसलिए उस किसान को हुई थी कि सारी लगन उसमें उसने लगा रखी थी। लेकिन आपको तकलीफ इसलिए नहीं है, आपका कोई बेटा इस्लाम के लिए नहीं कटा है, आपका कोई भाई इस्लाम के लिए नहीं कटा है, आपने कभी पेट पर पत्थर नहीं बांधे हैं, आपने कभी इस्लाम की तरक्की के लिए अपने पेट पर कभी पत्थर नहीं बांधे, आपने कभी खाना नहीं छोड़ा। तुम्हें तो पला पलाया इस्लाम मिला है। उन सहाबा से पूछो जिनका ओढ़ना बिछोना, जिनकी जिंदगी का हर लम्हा मुस्तफा जाने रहमत की यादों से मामूर था, अपनी जिंदगी को मुस्तफा जाने रहमत के नाम पर कुर्बान करने का जज्बा सादिक उन सहाबा के सीनों में जो ठाटे मार रहा था, उन्हीं सहाबा में एक मुस्तफा जाने रहमत के जालशील, मुस्तफा जाने रहमत के नाम, मुस्तफा जाने रहमत के यारेगार जनाबे सिद्दीक अकबर का नाम सरे फहरिस्त आ रहा है। वो मुस्तफा जाने रहमत का यार है। एक दिन मुस्तफा की बारगाह में आ गए, आकर अर्ज किया था या रसूल अल्लाह, अभी हाय आका कायनात इजाजत दीजिए इस्लाम का खुल्ला प्रचार किया जाए। तब पैगंबर ने इरशाद फरमाया अभी हालात बेहतर नहीं है, जब बेहतर हो तब चले जाना। तब मुस्तफा जाने रहमत के इरशाद पे अमल करते हुए मुस्तफा का यार खामोश हो गया। फिर दिन बढ़ते रहे, एक दिन फिर खड़े हो गए, अर्ज किया या रसूल अल्लाह, दिल चाहता है अब अलग ऐलान प्रचार किया जाएगा, खुल्ला तबलीग की जाएगी, आका से इजाजत मिली है। अब मुस्तफा जाने रहमत का यार अब जैसे ही मक्के के चौराहे पे गया था, वहां जाकर के ऐलान किया कुलू ला इलाहा इल्लल्लाहु तुफलिहू, ऐ लोगों कामयाबी चाहते हो अल्लाह की इबादत करो, कामयाबी चाहते हो अल्लाह को माबूद मान लो और मोहम्मद को अल्लाह का रसूल मान लो, कामयाबियां तुम्हारे लिए होगी, आसमां का शामियाना तुम्हारे लिए होगा, जमीन का फर्श तुम्हारे लिए होगा। आखिर मानो तो सही। लेकिन जैसे ही अबू बकर के जबान से निकलने वाले इन कलिमात को गफ्फार के कानों से टकराए हैं और जैसे ही टकराए थे अबू जहल कंपनी के चंद गुंडे निकले, उन गुंडों ने अबू बकर को पकड़ लिया, पकड़कर इतना मारा आपके कान से खून निकलने लगा, आपकी नाक से खून निकलने लगा, आपके मुंह से खून निकलने लगा, बेहोश होकर जमीन पे गिर गए। और जैसे ही जमीन पे गिरे सुबह को मारा गया था, शाम होने वाली है और जैसे ही शाम के वक्त में आपके कबीले का एक चौधरी निकला, उसने अबू बकर को देखा, देख करके खानदान में ऐलान कर दिया कहाफा के बेटे को मारा गया है, होश में नहीं है। उठा करके लोग घर ले आए और जैसे ही घर लेकर आए हैं तमाम कबीले के लोग जमा हो गए, खानदान वाले जमा हो गए, पड़ोसी जमा हो गए, रिश्तेदार जमा हो गए। हर एक की ज़बां उनकी हालत देख करके ये बोल रही थी अब अबू बकर बचेंगे नहीं, अब मर जाएंगे, अब नहीं तो कल मर जाएंगे, कल नहीं तो परसों मर जाएंगे। ऐ लोगों ये आज का दौर नहीं था, 1500 साल पुरानी बातें बता रहा हूँ। जिस जमाने में कोई वेंटिलेटर का बंदोबस्त नहीं था, जिस जमाने में कोई हॉस्पिटल का इंतजाम नहीं था, जिस जमाने में किसी आईसीयू का बंदोबस्त नहीं था, लेकिन एक जात थी, तमाम हकीमों के बड़े हकीम पैगंबर की जात थी, आकाए कायनात की जात थी, उन पे ही पे सबका भरोसा था। अबू बकर को मारा गया है, कोई इंतजाम नहीं, हर एक बोल रहा है अब अबू बकर बचेगा नहीं, अब मर जाएगा,
अब नहीं तो कल मर जाएगा, कल नहीं तो परसों मर जाएगा। इतना सुनना था। माँ की ममता आगे बढ़ गई और जैसे ही माँ आगे बढ़ी अपने बेटे के कानों पे लबों को रखा और अपनी कैफियत में कहा था, ओ मेरे बेटे अबू बकर अपनी आंखें खोल दे। आंखें खोलकर अपने माँ को माँ कहकर पुकार तो सही, तेरी माँ के कान तेरी आवाज सुनने के लिए वो बेटे बेचैन मुस्तरिब है। अपनी माँ को माँ कहकर आवाज दे। इसकी कहने लगा, क्या बोल रही है खातून, ये तेरा बेटा होश में होगा तब जवाब देगा, तेरे बेटे को होश होगा तब ये जवाब देगा। ये बेहोश पड़ा है, आखिर जवाब देगा तो देगा कैसे। लेकिन ममता थी नहीं मानी। थोड़ी देर के बाद फिर उठती है, उठकर बेटे के लबों कानों पे लबों को रखा और लबों पे रखकर लबों को रखकर उस माँ ने कहा था, ओ मेरे बेटे अबू बकर उठ जा, अपनी माँ को माँ कहकर आवाज दे। अपनी माँ को माँ कहकर बोला, तेरी माँ के कान तेरी आवाज सुनने के लिए। बेटे बेचैन है, बोल तो सही। बेटा होश में होता जवाब देता, लेकिन ममता की आवाज जब अबू बकर की सिमातों के पर्दे से टकराई है और टकराना था, अबू बकर ने आंखें खोली। अब मैं आपसे अर्ज करूं, इस पोजीशन में आप हो या मैं हूं, आंखें खुलेंगी, बीवी बच्चे याद आएंगे, आंखें खुलेंगी, माँ बाप याद आएंगे, आंखें खुलेंगी, अपने तिजारत याद आएगा, कारोबार याद आएगा, दुकानों मकान याद आएगा। लेकिन वाह रे अबू बकर, तेरे इश्क पर लाखों सलाम। वाह रे अबू बकर, तेरी मोहब्बत पे कुर्बान। अबू बकर ने आंखें खोली तो माँ ने कहा, ओ मेरे लाल तेरा हाल कैसा है। तो अबू बकर ने कहा, माँ ये ना पूछ मेरा हाल कैसा है, मुझे ये बता आमिना का लाल कैसा है। हाय हाय हाय, नारे तकबीर, नारे रिसालत, उर्से ख्वाजा सुलेमान शाह, मसलके आला हजरत। माशाअल्लाह। ये इश्क था मुस्तफा के गुलामों का, ये प्यार था मुस्तफा जाने रहमत के गुलामों का। आप क्या कर रहे हैं? आप तो कल भी नबी को तकलीफ दे रहे थे, आज भी सरकार का दिल दुखा रहे हैं। बस तकरीर आखिरी मरहले में है, मुफस्सल बयान गाज़ी मिल्लत का आपको सुनना है। मैं आपसे अर्ज कर रहा हूँ, मुस्तफा जाने रहमत का कलमा पढ़ने वालों, मुस्तफा जाने रहमत की बारगाह है। उस बारगाह में, सरकार की बारगाह में बुलबुल सिदरा हाजिर हो गए। हाजिर होना था, अर्ज करने लगे, या रसूल अल्लाह मैंने जन्नत देखी है। आका ये आपकी उम्मत के जन्नतियों के आमाल नामा है। पैगंबर ने देखा, देख कर के सरकार ने ठंडी सांस ली। इतना देखना था। फिर जिब्रील अर्ज करते हैं, आका देखिए ना, ये आपकी उम्मत के जहन्नमियों का नामे आमाल है। आका ने देखा, चश्माने नबुव्वत से आंसू निकल पड़े। इससे पता ही चलता है सरकार अपनी उम्मत के जन्नतियों को देखते हैं, ठंडी सांस लेते हैं। उम्मत के गुनाह देखते हैं तो सरकार के दिल को तकलीफ होती है। अब मैं आपसे अर्ज कर रहा हूँ, आपने नबी का कलमा पढ़ा है, आप मुस्तफा जाने रहमत के गुलाम है। पैगंबर आदम का मुस्तफा जाने रहमत की गुलामी का दम आप भरते हैं। लेकिन याद रखना, ये बुलबुल सिदरा हाजिर आए हैं, अर्ज करते हैं मैंने जन्नत देखी है। आका ये आपकी उम्मत के जन्नती है, आका ये जहन्नमी है। जैसे ही सरकार ने जन्नतियों को देखा, ठंडी सांस ली है। आका ने जहन्नमियों को देखा, पैगंबर की चश्माने नबुव्वत से आंसू निकल पड़े हैं। और जैसे ही आंसू निकले तो दिल कहने लगा, इसका मतलब यह है आका अच्छे अमल देखते हैं तो सरकार का दिल खुश होता है। पैगंबर आदम जब उम्मत की बदअमली देखते हैं, आका के दिल को तकलीफ होती है। अब खैरपुर के गयूर सुन्नी मुसलमानों, हसनैन नदा मंसरी गाज़ी मिल्लत और पीरे तरीक़त की मौजूदगी में आपसे ये बातें अर्ज कर रहा है। अगर वाकई पैगंबर आदम के आप गुलाम है तो याद रख लीजिएगा, मक्के वालों ने नबी को कम नहीं सताया था, मक्के वालों ने कितना जुल्म किया। आकाए कायनात ने जैसे ही होश संभाला था, पैगंबर की जिंदगी आगे बढ़ रही थी। पैगंबर ने दिल के दिल ने चाहा, जब ऐलाने नबुव्वत कर दिया तो सरकारे मदीना पर उस वक्त में कभी मुस्तफा जाने रहमत की ऊंट की ओजड़ियों को हालत सिजदा में सहने हरम में डाला गया, कभी मुस्तफा जाने रहमत पर कूड़े करकट डाले गए, आका के रास्ते में कांटे बिछाए गए। दिल ने
نے چاہا یہ شہر کے لوگ نہیں ماننے ہیں، طائف چلا جائے۔ پیغمبر طائف چلے گئے تو جیسے ہی طائف جا کر مصطفیٰ نے دین کی تبلیغ کا کام شروع کیا، اتنا دیکھنا تھا، وہاں کے چند لڑکے آگے بڑھے اور آگے بڑھ کر کے نبی پر پتھر مارے، اور اتنا پتھر مارا تھا کہ مصطفیٰ جان رحمت کے نالین پاک خون سے بھر گئے، اور جیسے ہی نبی کے نالین خون سے بھرے ہیں سرکار بیٹھ جا رہے ہیں۔ اب وہی دشمنوں کے لڑکے آقا کے بازو پکڑتے، اٹھاتے، پھر پتھر مارتے۔ آپ سے کہتا ہوں لوگوں، یہ پتھر کس لیے مارے جا رہے ہیں؟ یہ پتھر کس لیے کھائے جا رہے ہیں؟ یہ اونٹ کی اوجڑیاں کیوں ڈلوائی جا رہی ہے؟ یہ خندق مصطفیٰ جان رحمت کس لیے برداشت کر رہے ہیں؟ شیب ابی طالب میں آقا 1000 سے زائد دنوں کے لیے محصور کیوں کیے جا رہے ہیں؟ یہ قید و بند کی صعوبت ہے، یہ کیوں برداشت کی جا رہی ہے؟ تو ایک جواب ملے گا، اسلام آگے بڑھے اس لیے آقا پریشانی اٹھا رہے ہیں، اسلام آگے بڑھے۔ اب میں آپ سے عرض کرتا ہوں، یہ بتاؤ تو صحیح، کیا مکے والوں نے کم ظلم کیا تھا؟ کیا مکے والوں نے کم ستایا تھا؟ جو اپنی بد عملی کی وجہ سے آج ہم حضور کو تکلیف دے رہے ہیں، کل تو حضور ظاہری طور پر آپ حیا ظاہری طور پر آپ موجود تھے، آج سرکار مزار میں موجود ہے، تو کیا جب ان لوگوں نے ستایا تھا تو دل کہے گا اگر وہ ستا رہے ہیں تو ٹھیک ہے، اس لیے کہ دشمن ہے، دشمن کا کام تکلیف دینا ہے، انہوں نے کوڑے ڈالے، انہوں نے پتھر مارے، انہوں نے کانٹے بچھائے، اس لیے کہ وہ دشمن تھے، لیکن تم تو خدا کے بندوں مصطفیٰ کے غلام ہو، تم تو اپنی بدعملی سے اپنے آقا کے دل کو مت دکھاؤ، تم آقا کے دل کو تکلیف نہ دو، تم پیغمبر کے دل کو بالکل تکلیف نہ دو۔ یاد رکھ لیجئے گا، اگر مصطفیٰ کی وفاداری میں آپ نے زندگی گزاری ہے، آقا کی وفاداری میں اپنی زندگی کے شب و روز گزارے ہیں، اور اسی محبت کو لے کر جب بستر مرگ پر چلے جاؤ، فرشتہ روح نکالنے کے لیے آنے والا ہو، اور تم بستر مرگ پر لیٹے ہو، اس وقت میں جب تم دنیا چھوڑنے والے ہو تو اپنے امام کے شعر ورد سبا رکھو اور دنیا چھوڑ کے چلے جاؤ، اور پکارتے ہوئے دنیا سے یہ کہتے جاؤ، انہیں جانا، انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم۔